Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, I am going to discuss some very important thing with all people those are looking for public sector bank job. These 3 years are very crucial as far as job in public sector banks are concerned. After 2023, you will not find any notifications for public sector jobs. Even if you find some notification, the vacancies will be so low that it is meaningless. So the people, those are aspiring to become banker, they have only 3 years at their disposal to charter this journey. There are certain candidates, those are now in the first year of their graduation or doing 12th. Sometimes they ask, sir, what is our future? And why I am telling this well in advance, so that they can decide their career in some other field right from now. What I am telling you, it is a hard fact and it is bound to happen. Some people may agree, some people may disagree, it is their choice. But the hard realities are there. We must understand hard reality and gear up according to that. Why I am giving this information well in advance? So that you become serious about this competition in 2020, you are already eligible. If you are eligible in 2021, start preparation from now. If you are going to eligible in 2022, start your preparation from now. But if you are going to become eligible 2023, my advice is look for some other career option from right now. Now, what will be the trend of vacancies? That we should be very clear in our mind. In 2019, we found vacancies are higher than 2018. Now, in all these 3 years, every year vacancy will be lower than previous year. So, in 2020, if we look at public sector group, the number of vacancies in IBPS PO clerk will be lower than declared vacancies of 2019. What does it mean? Why I am giving this information to you? It simply means it will lead to higher cutoff. And to get the job, I should be ready to get higher marks in examination. And how I can get the higher marks in examination, that is my focus on all videos where I have discussed with you right methods of preparation. That means you have to make a timetable, that is you have to plan and then execute. Competition is going to be tough. Some people may be engaging you in various news items. I always tell you, don't waste your energies in discussion on various news items that may come your way. This year is going to be very challenging for you. It will not be so easy to get the bank job like previous years. Although in previous years also it was not easy. But this year it will be much tougher because only few notifications will come during the year. Even the government sector jobs may be very rare to find this year. You must have seen that most of the examinations are already postponed for few months by central government or state governments. So all these people, those who are competing for those examinations, are now losing hope. And they are deciding to fight for banking and insurance jobs. Earlier, this was their second option. Now, for many candidates, this is going to become their first option because other options are gradually not available. That does not mean that we should become fearful. This does not mean
that we should have a fearful feeling in ourselves. Why I am telling all these facts is I am making you mentally prepared for a challenge which you have to face. And you have talent to get clear of this challenge. And you can very easily win even in such a tough competition if you follow my advice that I have given in all my previous videos. I have provided 5 essential tools to you. First is good mock test. You must subscribe annual plan, identify your weak areas and start working on that. Second, good knowledge of current affairs. So I have identified good PDF for you. Subscribe it, start reading it. Good knowledge in banking. So I have gifted you 189 videos that is created by me with the hard work of 3 years and 30 years of experience. Watch 5 to 10 videos daily. Then you should be aware about current events in banking, economic and financial world. For that also I have given you a playlist. Watch 5 videos daily. Then you must know how to improve in English. You must know how to improve in quant. You must know how to improve in reasoning. You must know what is the right way of preparation of general awareness. For that, I have given you excellent videos in a shape of a playlist, right way of preparation. Then you must know art of making a good timetable. Again, perfect timetable video is there. Watch that. So if you start preparation in the right earnest and don't waste your energies on discussions on irrelevant things, that is date of examination, then whether banks will be privatized or not privatized, or any other news that may come your way, you will be winner, because many people will be engaged in that and wasting their energies, and ultimately they may suffer. And that is why these type of news are spread, because there is always one section of society that is always busy in spreading rumors with their own objectives. And normally a common candidate fell prey to this, and he starts discussing on that. The moment he starts discussing on those areas, he gets worried. The moment he gets worried, he becomes defocused. The moment he becomes defocused, he loses the opportunity to snatch a job. But the successful candidate always avoids such type of news. He is always planned. He always focus, or she always focus on study and ultimately become victorious. Now you are going through a challenging phase of life. It will not be very easy to get the job. So we have to be watchful and follow the steps which I am telling you. And if you will follow my advice, I am sure you will be successful, like so many candidates of our channel are already successful. So God bless you all. My objective of telling all these things is not to frighten you or to give fear to you. The sole purpose is to make you alert of the challenge ahead. Unless we know the reality, we will not work hard. And only working hard will get you a job. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं. कुछ लोग हैं 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, 1st ईयर में हैं. कुछ लोग पुराने ग्रेजुएट हैं, बार बार जॉब दे रहे हैं. इन सभी की एक ही क्वेरी बार बार आती है कि सर आपको क्या लगता है बैंकिंग के अंदर अब क्या संभावनाएं हैं. तो आज का वीडियो मैंने इसी बेसिस पे बनाया है ताकि आपको मैं एक बहुत क्लियर पिक्चर दे दूं, रोड मैप दे दूं बैंकिंग जॉब मार्केट में क्या होने वाला है. जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल है, जो 2019 में वैकेंसीज आई है, ये रीसेंट टाइम की हाईएस्ट वैकेंसीज है. 2020 में जो वैकेंसीज आएंगी ये लोअर होंगी 2019 से. 2021 में जो आएंगी वो उससे भी लोअर होंगी,
और 2022 में जो आएंगी वो उससे भी लोअर होंगी। और 2023 के बाद कोई संभावना नहीं है अगले 6 साल तक कि नोटिफिकेशंस आए। अगर आएंगे तो नेग्लिजिबल वैकेंसीज होंगी। कुछ लोगों को इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो होने वाला है, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे दे रहा हूँ। जिस चीज़ को मैंने जिया है अपने कैरियर के अंदर, 1986 से 1991 के दौरान मैं फैकल्टी मेंबर था। मुझे पता है कितनी रिक्रूटमेंट हुई है। मैं HRD का चीफ भी रहा हूँ बैंक के अंदर। मुझे पता है कितनी रिक्रूटमेंट हुई है और कितनी फ्यूचर में रिटायरमेंट होगी। इसीलिए मैं आपको इन चीज़ों के लिए आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो डेटा है, मेरे पास वो जो इन्फॉर्मेशन है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। हो सकता है कि उनको अजीब लगता हो, पर जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप उसको मानोगे कि अग्रवाल जी ने पहले ही बता दिया था। और इस सारी बातों को बताने का मकसद क्या है? मकसद है आपको आने वाले कंपटीशन के बारे में रियल पिक्चर दिखाना। क्योंकि जब वैकेंसीज कम होंगी और अदर सेक्टर में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट जॉब पे कंसंट्रेट करते थे, वो लोग भी इस बार बैंकिंग और इंश्योरेंस जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। और जो लोग बैंक की जॉब के लिए अप्लाई करते थे वो तो करेंगे ही। तो कैंडिडेट एक तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ वैकेंसीज कम होंगी, तो नेचुरल है आपका कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कोई डरने की बात है। यदि आप प्लान्ड हैं, यदि आप सिस्टमेटिक हैं, तो आप कम वैकेंसी में भी जीत जाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए एक ही वैकेंसी। तो ऐसा कुछ नहीं है वैकेंसी कम हो जाएगी तो आप जीत नहीं पाएंगे। पर जीत कब नहीं पाएंगे? जब आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। जीत आप कब नहीं पाएंगे? जब आप उन बातों में, उन खबरों में उलझ जाएंगे जो उलझाने वाली खबरें बाजार में चल रही हैं। जीत कब पाएंगे? जब आप इन खबरों को सुनना बंद कर देंगे। जीत कब पाएंगे? जब आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम को ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। आप इससे कोई सरोकार नहीं रखेंगे कौन सी डेट को एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है, कब क्या होने वाला है, बैंक प्राइवेट होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे। आपका तो काम है कि जॉब मुझे तभी मिलेगी जब मेरा एग्ज़ाम पास होगा। एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, मुझे तो पास करना ही है। तो जितने भी दिन मिलेंगे मेरे कंपटीटर को भी मिल रहे हैं। तो यदि मैं एक भी दिन वेस्ट कर दूंगा तो नेचुरल है मैं पिछड़ रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है? मुझे निरंतर पढ़ाई करनी है। और इसीलिए ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया, आपको राइट एडवाइस एट राइट टाइम देने के लिए। ये 3 साल का खाका मैं आपको सामने पहले से रख रहा हूँ। तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं या 12th क्लास में हैं और वो बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक में आने का सोच रहे हैं, उनको किसी और क्षेत्रों के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। ये ना हो वो 3 साल इसके लिए तैयारी करें और जब मौका आए उनके सामने जॉब से ना हो। तो ये इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोग 2 साल पहले से, 3 साल पहले से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और फिर बाद में वो निराश ना हो। अभी मौका है, आप किसी और एरिया में एक्सपर्टाइज ग्रहण कर सकते हैं जहां आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए। पर जो लोग जॉब की मार्केट की तरफ ध्यान रख रहे हैं, उनको ये बिल्कुल क्लियर करना है अपने मन में कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए अब आपके पास सिर्फ 3 ही साल है, 2020, 2021 और 2022, और इसमें भी फॉलिंग ट्रेंड ऑफ वैकेंसीज होना है। तो इसको जीतूंगा कैसे मैं? इसको जीतने के लिए मैंने आपको 5 टूल बताए हैं। पहला है बेहतरीन मॉक टेस्ट, जिससे आप अपनी कमियां ढूंढ सको, उन कमियों पे काम कर सको और उन कमियों को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके कंपटीशन को जीत सको, जैसे हमारे अधिकांश लोगों ने जीता है 2019 में। अगर आप उनके कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने मॉक टेस्ट को भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया है उनकी सक्सेस का। मेरी बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो को एक महत्वपूर्ण कारण बताया है सक्सेस का। मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को एक महत्वपूर्ण कारण बताया है अपनी सक्सेस का। हार्ड वर्क कैंडिडेट का ही है, पर सिर्फ इस चैनल का रोल है आपको एक दिशा प्रदान करना, डायरेक्शन देना, आपकी हैंड होल्डिंग करना, और उसी से ही अंतर आ जाता है। क्योंकि कोई कैंडिडेट
बहुत ज़्यादा नंबरों से फेल नहीं होता है, कोई 1 नंबर से फेल होता है, कोई 2 नंबर से, कोई 3 से, कोई 5 से। तो यदि आपको कोई दिशा दिखाने वाला मिल जाता है तो आप ये नंबर आसानी से पिक कर सकते हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टूल है, करंट अफेयर की अच्छी नॉलेज होना। उसके लिए मैंने अच्छा PDF आपको दिया है, उसका आप एनुअल प्लान ले लें। इसी तरह मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया, उसका एनुअल प्लान ले लें। बैंकिंग अवेयरनेस में नॉलेज बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके लिए 188 वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट आपको भेंट की है। 5-10 वीडियो रोज देखिए। 3 साल लगे मुझे इसको बनाने में, और 30 साल के तजुर्बे से बनाया है। जिसने भी उनको देखा है उसने यही कहा है कि सर बहुत मदद मिली है। ऐसे भी बहुत कैंडिडेट हैं जो पिछले सालों में इंटरव्यूज में फेल हुए हैं। अब उन्होंने ये वीडियोस देखी है तो उन्होंने देखा कि सर जो इसमें किया वही तो पूछा था हमसे। अगर वो पहले देख के चले जाते तो उनकी भी नैया पार हो जाती। इसके बाद करंट इवेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, उसकी भी मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है। 5-10 वीडियोस रोज देखिए। फिर कुछ लोगों को दुविधा है कि सर मैं इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूं, कुछ को दुविधा है मैं क्वांट कैसे इम्प्रूव करूं, कुछ को दुविधा है मैं रीजनिंग कैसे इम्प्रूव करूं, कुछ को दुविधा है मैं जनरल नॉलेज कैसे इम्प्रूव करूं, कुछ को दुविधा है मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं। इन सब की वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, राइट वे ऑफ प्रिपरेशन में। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको देख लीजिए, उसको आजमाइए। बहुत लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये जो सारी तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की है, आपको आने वाले दिनों के बारे में सचेत किया है। अगर हमें पता होगा कि कितना टफ कंपटीशन है, हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे और हम जरूर कामयाब होंगे। और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप कामयाब हो। और मेरी आपसे एक निवेदन है कि बिल्कुल भी 1 मिनट जाया ना करें बेकार के डिस्कशंस पे। मैं उन टॉपिक्स पे इसीलिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उससे कैंडिडेट्स का मन भ्रमित हो जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 1 लाख लोगों की मदद और नौकरी पाने में, उससे हम भटक जाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है सर इसको क्लैरिफाई कर दो, इसके ऊपर वीडियो बना दो। मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो बन जाएगी उस टॉपिक पे, पर कई लोग उसके अंदर उलझ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।